Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help and guide you in biology as per as board and NEET examination, including various competitive examinations of medicals. So we were looking this chapter, dear students, biological classifications. Biological classification, there is a lot of confusions in this chapter. There are some scientists classified into system of classifications. Some scientists classified in three system of classification. Some scientists classify 4, 5, 6 and 7th classification of systems. There is a lot of confusion and in this system there is a lot of demerits. तो हम लोग इस demerits को बच्चों point out करते हैं what is the demerits of two system of classification of biological classifications. तो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं बच्चों into kingdom classification prokaryotes. Prokaryotes means in the very beginning we already have discussed. Pro means primitive, early, karyon means nucleus. Those organisms have primitive, early, not mature, not developed nucleus, that is called prokaryotic. Okay. For example, bacteria, blue green algae, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है बच्चों. साइनोबैक्टीरिया, इसी को शॉर्ट फॉर्म में BGA भी बोला जाता है. डोंट गो टू बी कंफ्यूज. ओके, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको दो तीन नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया, BGA और ब्लू ग्रीन एल्गी शॉर्ट फॉर्म में. तो प्रोकैरियोट का मतलब हमने आपको बताया बच्चों, प्रिमिटिव, अर्ली, नॉट मैच्योर, लैकिंग ऑफ द न्यूक्लियस. In the primitive stage, this is called the prokaryotes. For example, bacteria, blue-green algae. Blue-green algae is also commonly known as cyanobacteria or BGA. ठीक है? तो अब इसके बाद eukaryotes. U means true. Those organisms have true nucleus. Nucleus comes late but mature, well developed. Okay? तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का डेवलपिंग होता है. ठीक है? तो जिसमें इसका एग्जांपल आपका फंजाई, मॉसेस, ब्रायोफाइट्स, फर, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है बच्चों. समझ गया? फॉर में कोई फ्लावर नहीं होता है, इसका लीफ जो है येलो कलर, येलोइश कलर का होता है. और ये टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म जो है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है. मैंने पहले आपको बताया था नॉन फ्लावरिंग. और ये जो है फ्लावरिंग, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स है. फ्लावरिंग प्लांट्स प्लेस्ड इन द सेम किंगडम. ये दोनों के एक ही किंगडम में प्लेस कर दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया. दिस इज द डिमेरिट. So one time more, just I go to repeat it again. The two kingdom classification, prokaryotes. Prokaryote means those organisms don't have nucleus, early stage, not developed, not mature. तो इसका एग्जांपल आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, BGA, दैट इज द नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी. हाँ, और इसके बाद आता है यूकैरियोट. यूकैरियोट मींस, यू मींस ट्रू. Those organisms have a late nucleus, comes well developed, mature. So these examples are fungi, mosses, bryophyte, fern, pteridophyte, gymnosperm, and gymnosperm is not flowering plant, and angiosperm is flowering plant, are placed in the same kingdom. This is the demerit, but it should not be placed in the same kingdom. It should be bifurcated and classified to other kingdom. ये पहला इसका जो है फर्स्ट डिमेरिट है. और सेकंड डिमेरिट है इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस बच्चों दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंपोज देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. फॉर एग्जांपल अमीबा. With the help of the single cell, they act as total activity of the life with the help of the single cell, that is called unicellular. Okay? बहुत सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्टम्स के बारे में हम लोग आगे जानेंगे. तो इसमें है इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास,
and Chlorella and multicellular organisms as Spirogyra are placed together under algae, जबकि algae में नहीं आता है ये, ठीक है। तो ये सब all these systems are indicate the demerits of this classification. And plant kingdom because they have cell wall, इसमें cell wall है, लेकिन फिर भी इसमें demerits है क्या? In two kingdom system of classification, unicellular organisms, for example, Chlamydomonas and Chlorella, and multicellular organisms as Spirogyra are placed together under the algae. In plant kingdom, इसमें plant kingdom algae में रखा गया because they have cell wall. It's correct, but difference क्या है? मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, और वो जो है आपको एक सिस्टम में आप नहीं रख सकते। दिस इज द सेकंड डिमेरिट। एंड थर्ड डिमेरिट, this classification did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plants. अब देखो बच्चों, heterotrophic interdependent for their food to other ones, that is called heterotrophic. For an example, आपको हमने बताया था hetero means others, trophic means dependent for their food on host, वो होस्ट पर अपने फूड के लिए इंटरडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने बताया था मॉस्किटो, ये हेटरोट्रॉफिक है, ये तो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाता है, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, और ऑटोट्रॉफिक मींस सेल्फ प्रिपेयरिंग फूड, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। लीव्स आर कॉमनली नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द ग्रीन प्लांट्स बच्चों। इसको ऑटो मींस सेल्फ, ऑटो मींस सेल्फ एंड हेटेरो मींस अदर, जो एक दूसरे पर डिपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता, ऑटो सेल्फ डिपेंडेंट होता है फॉर देयर फूड, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, they showed characteristic differences in their cell wall composition, और इसमें क्या है characteristic differences दिया गया है क्या? as fungi had chitin, आप देखा होगा बच्चों कि कीड़े मकोड़े को देखा होगा बहुत सारे, उसके ऊपर एक वॉल होता है, कवर होता है, वो उसको बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल किस चीज का बना होता है बच्चों? ये काइटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये उसके ऊपर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट। इसमें थर्ड डिफरेंस क्या है? ये हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक को, हेटरोट्रॉफिक फॉर एग्जांपल फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स को डिफरेंशिएट किया ही नहीं गया। और इसमें क्या करता है ये? दे शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, इसमें कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस दिखाया गया, सेल वॉल कंपोजिशन एज फंजाई हैड काइटिन। इट्स करेक्ट, फंजाई हैड काइटिन, बट फंजाई हैड काइटिन बट lacking of the cell wall, and in their cell wall while the green plants had a cellulosic cell wall। तो इसमें क्या है बच्चों? ये cellulosic cell wall होता है प्लांट्स में। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है? डिफरेंस है, इसको सेम कैटेगरी में रखा गया है। और पंजो नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंसेस क्या है इसमें? फोर्थ डिमेरिट्स क्या है? पोजीशन ऑफ यूग्लिना इज नॉट फिक्स इन द सिस्टम, और ये यूग्लिना जो है, जिसको हम लोग यूग्लिनॉइड्स भी बोलते हैं, तो इसको इसमें रखा ही नहीं गया, इसको कोई प्लेस दिया ही नहीं, कोई नंबर दिया ही नहीं गया, इसको एक सिग्निफिकेंस दिया ही नहीं गया है। दिस इज द फोर्थ डिमेरिट। एंड फिफ्थ डिमेरिट, इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पैरामीशियम and amoeba were placed in the animal kingdom because cell wall is absent in them। और इसको जो है रखा गया है पैरामीशियम और अमीबा एनिमल किंगडम में रखा गया है। और इसके पहले जो है आप बच्चों आप पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में रखा गया था, लेकिन ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, यूनिसेल्युलर
प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट एनिमल, ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो आप, दिस इज नॉट एन एनिमल, ऑर्गेनिजम्स। अब इसको एनसीईआरटी में क्या किया गया बच्चों, इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 11 से कन्वर्ट कर दिया 12th में, क्योंकि ये जो है पैरासाइटिक है, इससे बहुत सारे डिजीज अकर होता है फॉर द मैनकाइंड एंड फॉर द एनिमल्स। इसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि इनटू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पैरामीशियम, पैरामीशियम का बॉडी जो है एक सीलिया से ढका होता है, बहुत ही थाउजेंड्स नंबर, बॉडी इज कवर्ड with thousands of cilia, thousands of cilia, ये प्लूरल है cilia, इसको सिंगुलर में कहीं सीलियम भी लिखा होगा, डोंट गो टू बी कंफ्यूज, cilia which helps in locomotion एंड स्विमिंग। ठीक है बच्चों, और अमीबा जो है ये पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स है, और इससे अमीबिक डिसेंट्री होता है, अमीबिक डिसेंट्री। तो ये आपने समझ गया, ये सारी की सारी जो है एटलीस्ट इसके मेन फैक्टर्स हैं डिमेरिट्स के 5 पॉइंट्स। इस 5 पॉइंट्स को आपने अच्छा तरह से समझा बच्चों। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं किंगडम मोनेरा में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर।